Good morning, students. In last class, we have discussed about single row functions and another is aggregate function. So first, we have discussed about single row function. That means each single value के regarding आपकी a single result होगा वहाँ पे. So last class we already discussed single row function, that is first numeric functions, that means math function. और math function आपके थे वहाँ पे single row function में power, round and mod. And in string function u case, that is uppercase upper letter में convert करने के लिए to convert the string into lower case l case या lower. Mid substring used to extract the substring from a string. string में से कुछ part आपको extract out करना है, उसके लिए तीन function है, same name, working same है तीनों की, but either use mid, substr or substring. Length function is used to calculate length of the string. Left, number of characters from the left side of the string. Right will extract number of characters from right side of the string. instr in str ये सर्च करता है यहाँ पे and then display करता है position of that string. तो सर्चिंग करता है, मैचिंग करता है वहाँ पे and then find out करता है. तो ltrim जो भी है लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट साइड दैट लीडिंग स्पेसेस स्टार्टिंग में जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए. r trim means trailing spaces, that means लास्ट में जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए, और trim रिमूव स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से. सो नेक्स्ट फंक्शन आर डेट फंक्शन. नाउ डेट, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम. वी ऑलरेडी डिस्कस दीस ऑल फंक्शंस. Now we'll display the date and time of current date and time of system का जो भी डेट है वो आपकी जनरली डिस्प्ले करेगा. देन डेट will extract only date part from system. now function में आपके दोनों टाइम एंड डेट दोनों आएगा. तो अगर उसमें सिर्फ ओनली मुझे डेट एक्सट्रैक्ट करना है तो आई विल यूज डेट. देन मंथ will display the month of the from the डेट में से मंथ एक्सट्रैक्ट आउट करेगा. मंथ नेम function will extract out month name from the date. Year function will extract out year from the date. A day function extract out day from the date. And day function, so day function will extract out day from the date. Then day name. So these are the function. So last class we have already discussed power function to calculate power, x to the power y, round function to round off the number n to d number of decimal places. Then mod will return the remainder after dividing a by b. Then we next use string function. First is use u case or uppercase, convert the string into uppercase letters. Lower or l case to convert the string into lower case letters. Then mid, substring, substr, return the substring of size n starting from the specified position. That means एक string आपको input ली है आपने, उसमें से एक position दोगे और उस position से लेके n number of character कितने हैं उसके basis पे आपके number of character कितने हैं उसके basis पे वो सब string find out करेगा वहां पे. तो एक extract करेगा small string from a big string. That means sentence से आपको word extract करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे mid, substr, substring. Then length, return the number of characters in a specified string. जो भी string आप specify करोगे उसकी length calculate करेगा. That means number of characters कितने हैं including spaces, जो भी आपने spaces दिए हैं उनको भी count करेगा. Then left, returns the n number of characters from the left side of string. Right will display n number of characters from right side of string. instr, return the position of first occurrence of substring in the given string. That means string में substring को search करेगा और जहां पे अगर मैच कर दिया तो वहां पे पहली बार जहां मैच हुआ उसका फर्स्ट कैरेक्टर का जो भी पोजीशन है वो डिस्प्ले कर देगा. Then ltrim returns the given string after removing leading byte spaces from string. तो string के आगे जो भी आपके spaces हैं उनको remove करेगा. और rtrim जो है end में byte spaces जो spaces आपने गलती से छोड़ दिए हैं उनको वो प्रिंट करेगा वहां पे. और ट्रिम बोथ साइड से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को, दैट मींस राइट साइड पे जो स्पेसेस हैं और लेफ्ट साइड में जो भी स्पेसेस हैं उनको रिमूव करेगा. r trim and l trim. Then
लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डेट एंड टाइम फंक्शन, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ डेट एंड टाइम फंक्शन को। So first started with date function. So first you have to start the MySQL, then enter the password, whatever the password. अगर लैब में वर्क कर रहे हैं तो ldm@123. Then whatever the function is, then select use और उस function का name लिखें, तो उससे semicolon last to end the function. So now function will return the current date and time. तो current date and time क्या है सिस्टम का, वही आपके प्रिंट करेगा, ठीक है। So now function will return date and time, current date and time. आज का जो date and time है अभी का, वो आपके रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो 0 रिवर्स ऑर्डर में है, तो फर्स्ट ईयर, देन मंथ, देन डेट। तो 2021 0805 और जो टाइम है यहाँ पे 11:00, दैट मींस HH पहले R, देन मिनट्स, देन सेकंड्स, इस फॉर्मेट में फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपके करंट डेट एंड टाइम दोनों ही आपके प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे डेट चाहिए ओनली, तो I must use this date function to extract out date from the now function. Now function का आउटपुट जो है उसको से अगर मुझे डेट फाइंड आउट करनी है, तो I will use date function. और ऐसे ही सेम अगर आपको टाइम एक्सट्रैक्ट आउट करना है now function में से, तो टाइम function will be used. So आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, वेट थोड़ी देर। So next function is time. First function था आपके now, then time, date, फिर time, then select. The next function is day. So if you want to extract day from a date, date आपके यहाँ पे है, date function से मैं date का फाइंड आउट करूंगा now से, और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आपने ओपन किए उतने क्लोज होने चाहिए, तो 5। तो नाउ आज की डेट क्या है 5, तो डे फंक्शन विल गिव रिजल्ट 5। तो डे यहाँ पे डेट में से 5 प्रिंट कर रहा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे in place of this function I write here only date 2021-09-09 और ये डबल कोट्स में डालते हैं, आपको पता है ओनली स्ट्रिंग वैल्यू और डेट आपके डबल कोट से सिंगल कोट्स में आपको यूज करना, अदरवाइज तो 09-09-2021 में से ओनली डे निकाला है 9। अगर मुझे मंथ निकालना है, देन आई गो फॉर मंथ, एंटर। तो मंथ इज आल्सो 9, सितंबर है। मंथ का नेम आपको चाहिए, तो देन मंथ नेम, सिंपल सी टर्म है, सिंपल सा वर्किंग है यहाँ पे, तो नेम, मंथ नेम। अगर आपको ईयर निकालना है, तो गो फॉर जस्ट ईयर फंक्शन, YER ईयर, एंटर। ईयर फंक्शन विल वर्क लाइक दैट। तो ईयर एक्सट्रैक्ट आउट करेगा डेट से ओनली, तो दिस विल एक्सट्रैक्ट आउट ओनली ईयर। और ईयर भी यहाँ पे 4 टाइम बाई फॉर्मेट फॉलो करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि MySQL के अंदर जो डेट फॉर्मेट सपोर्ट करता है SQL, वो है पहले 4 टाइम बाई -mm-dd, और टाइम का फॉर्मेट HH:mm:SS, तो R, मंथ एंड सेकेंड्स। तो इस तरह से आपकी वर्क करता है। So next is, if I want to find out the day name of the day on 9, तो थर्सडे होगा वहां पे 9 सितंबर को, थर्सडे डिस्प्ले थर्सडे। डे ऑफ द वीक का डे कौन सा होगा 5, क्योंकि थर्सडे है तो थर्सडे को संडे 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके वो काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो इस तरह से आपके डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ, इफ आई राइट डे ऑफ मंथ, this will display the day of month is 9, 30
30 और 31 या 28 डेज का ही मंथ होता है, तो वहां पे डे ऑफ मंथ. I also go for day of year also. This will display 252nd आपके डे ऑफ द ईयर है, तो टोटल 252nd डे होगा वहां पे. टोटल नंबर ऑफ 365 डे में से 252nd जो है 252 जो है डे होगा वहां पे. तो इस तरह से डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर, डे, डे नेम, मंथ नेम, मंथ, ईयर, ये सारे फंक्शन है आपके जनरली यूज फॉर आपके. सो हमने पढ़ा यहाँ पे नाउ इट विल रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट इन टाइम, देन डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट और टाइम एक्सप्रेशन. आपके पास अगर टाइम और डेट दोनों है वहां पे, ओनली एक्सट्रैक्ट आउट ओनली डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट इन टाइम. देन मंथ विल जो फंक्शन है आपकी, दिस विल रिटर्न द मंथ इन न्यूमेरिक फॉर्म फ्रॉम द डेट में से ओनली मंथ की न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करेगा 0 to 03 अप टू 1 to 12. तो 01 से 12 तक आपकी वैल्यूज कोई भी ले लेगा वहां पे. तो मंथ नेम दिस विल रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्म में आपकी डे मंथ का नेम प्रिंट करेगा वहां पे. ईयर ऑफ डेट दैट मींस इट रिटर्न्स ईयर फ्रॉम द डेट, और ये भी न्यूमेरिक फॉर्म में होगा वहां पे. डे फ्रॉम द डेट इट रिटर्न्स द डे पार्ट फ्रॉम द डेट, तो डे भी न्यूमेरिक 01 से लेके 31 तक कोई वैल्यू सकती है. डे नेम डेट इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द डे फ्रॉम द डेट. फिर आपको बताया डे ऑफ द मंथ, डे ऑफ ईयर, डे ऑफ वीक एंड सो ऑन. These are the functions used for the, और आप सेम फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो ऑन द. तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा वहां पे एग्जांपल, जो आपको इजीली समझ में आएगा वहां पे. अब नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीगेट फंक्शन. तो एग्रीगेट फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन. ऊपर क्या था, ओनली सिंगल रो फंक्शन, दैट मींस इनपुट में आपने सिंगल वैल्यू दिया, रिजल्ट में आपको सिंगल वैल्यू मिला. तो देन this is the single value functions. Up now we go for multiple row function. That means these function work on set of record, that means set of values पे work करता है as a whole and return a single value for each column of the record on which function is applied. तो कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं उनके रिगार्डिंग, दैट मींस कॉलम में बहुत सारी रोज में वैल्यू होगी, बट जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा दैट विल ओनली अ सिंगल वैल्यू. तो सिंगल रो फंक्शन है मल्टीपल रो फंक्शन. It operates on a single row at a time. Single row at a time, it returns one result per row. तो एक रो के रिगार्डिंग सिंगल रिजल्ट होगा वहां पे. It can be used in select, where and order by clause. सिंगल रो फंक्शन कहाँ पे भी यूज हो सकता है, select के साथ में, where clause और order by clause साथ में. Then math, string and date function are example of single row function. अब multiple row function, it is operate on group of the rows. Single row नहीं, आप group of row. It returns one result for a group of row. It can be used in select clause only. This will be max, minimum, average, sum, count and count star example of multiple row functions. So they here the example of aggregate function. First is max, then column का name देना है, उस particular column में largest value maximum value calculate करेगा from a specified column. एक column की input लेगा max. आपको अगर average में निकालना तो max avg function column का name है, तो वो maximum calculate करेगा वहां पे average column से. So return the largest value from the specified column average. तो यहाँ पे जैसे select max price from inventory, this will take maximum value from price, और टेबल का नेम है inventory. तो inventory टेबल से आपके maximum प्राइस कॉलम में जाएगा, प्राइस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा एंड देन प्रिंट कर देगा वहां पे. तो मैक्स प्राइस 6,73,112. देन मिनिमम कॉलम रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम. तो कॉलम से आपकी मिनिमम और लेस स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलम और फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल. कॉलम भी पर्टिकुलर टेबल का होगा वहां पे. सिलेक्ट मिनिमम प्राइस, और प्राइस कॉलम बिलोंग्स टू टेबल इन्वेंटरी. तो फ्रॉम इन्वेंटरी आपको लिखना होगा, तो ये मिनिमम कैलकुलेट करेगा. देन एवरेज विल कैलकुलेट एवरेज. तो आप देखेंगे यहाँ पे मिन मैक्स मींस एक ही वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो सिंगल वैल्यू पूरे कॉलम में सर्च करेगा बट अ सिंगल वैल्यू. दैट मींस इट इज अ मल्टीपल रो फंक्शन. मल्टीपल रो पे वर्किंग करता है बट जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है सिंगल रो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. तो यही आपके डिफरेंस है वहां पे. वो वर्क ऑन सिंगल रो रिकॉर्ड, सिंगल रो, इट वर्क्स ऑन मल्टीपल रो. आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है सिंगल आउटपुट रिजल्ट का रिगार्डिंग सिंगल रो. यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है ग्रुप ऑफ रो पे परफॉर्म करता है, सिंगल रो रिजल्ट देता है वहां पे.
What happened, Sivan? What's the problem, Sivam? So if you have any problem, you can message me on my WhatsApp number. So in next class we will solve out your problems. So कहाँ पे भी problem हो वहाँ पे तो max, minimum, average, these are work on columns. कॉलम पे वर्क करता है बट रिजल्ट होता है सिंगल रिजल्ट आएगा. एवरेज का भी रिजल्ट सेम आएगा, सिंगल आएगा, ओनली सिंगल सारी वैल्यूज का एवरेज निकालेगा वहां पे. देन सम का भी क्या होगा, पूरे कॉलम में जो वैल्यूज है सबको सम करेगा वहां पे. देन काउंट कॉलम, रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाई कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यू. अब काउंट जो फंक्शन है आपके वर्क करता है, वर्क ऑन होल टेबल, वर्क ऑन ओनली अ पर्टिकुलर कॉलम. The first part, if work on a particular column, it will count only those values or rows, those values जो नल वैल्यू नहीं है वहां पे. अगर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपके पर्टिकुलर कॉलम में तो ये काउंट फंक्शन जो है नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, बट ये ओनली इन अ पर्टिकुलर कॉलम. जब काउंट ओनली कॉलम में काउंट कर रहा है, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है. तो यहाँ पे देखेंगे एम नंबर, मेंबर नेम, अमित, कवरीत, कविता और नल, फोर्थ वैल्यू इज नल. सो अगर वो काउंटिंग करता है उस केस में तो यहाँ पे नल को काउंट नहीं करेगा, काउंट मेंबर नेम. उस केस में 1 2 3 नल को इग्नोर करेगा, नल को काउंट नहीं करेगा. दैट मींस जब काउंट फंक्शन वर्क करता है कॉलम पे तो दिस विल इग्नोर नल वैल्यूज इन अ कॉलम. तो कॉलम में जो भी नल वैल्यू है उनको इग्नोर करेगा. बट व्हेन यू स्टार्ट विद काउंट स्टार, दैट मींस काउंटिंग ऑल द कॉलम्स, उस केस में क्या होगा कि वैल्यू जो है नल वैल्यू सी एक कॉलम में होगी, सारे रिकॉर्ड पूरा एक रो तो नल नहीं होगा. तो उस केस में काउंट करता है ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड. तो काउंट स्टार स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. तो चाहे वो नल है या नहीं है तो भी वो 4 काउंट करेगा. ऊपर वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो 1 2 3 4, क्योंकि मेंबर नंबर में वैल्यूज है आपके 1 2 3 4 है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपके ओवरऑल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो 4 है. बट अगर कॉलम मेंबर नेम की बात करें तो वहां पे एक वैल्यू नल है और 3 वैल्यू दूसरी है. दैट मींस इसका आउटपुट आएगा 3. इस तरह ये वर्क करता है यहाँ पे. काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी वेयर मॉडल इज इक्वल टू bxi. तो इस तरह से वर्क करेगा यहाँ पे. So we go for a question. Consider the following table: name, product, showing detail of products being sold in a grocery shop. First is P code, another is P name, then unit price, then manufacturer. Create first party है, create the table product with appropriate data types and constraints. First we have to create a table, then go for next. Create the table product with appropriate data type and constraints. So then second part is identify the list primary key in the product table. तो product table में primary key कौन सा होगा, we have to find out that. तो first column को हम ignore कर रहे हैं अभी. second column is P name, product name. तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास toothpaste जो है soap भी 2 time entry है, that means duplicate entries exist कर रही है यहाँ पे, data redundant है. तो ये column जो है not become a primary key. तो primary key की दो condition है. first is not null value, another is यूनिक वैल्यू. तो प्राइमरी की दो कंडीशंस आपको हमेशा लर्न करनी, मेमोराइज करनी है यहाँ पे. फर्स्ट कंडीशन इज इट कंटेन नॉट नल वैल्यू. दैट मींस इस कॉलम को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं दे सकते. यहाँ पे वी हैव टू एंटर सम वैल्यू. और सेकंड पार्ट इज यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं देगा.
तो पी नेम अगर बात करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज है यहाँ पे, आपके यूनिक वैल्यू नहीं है, दैट मींस पी नेम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते वहां पे, तो पी नेम को हम यहाँ पे, देन यूनिट प्राइस भी हो सकती है कि कोई भी दो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्राइस सेम हो तो यूपी जो है यूनिट प्राइस को भी आप नहीं लेंगे। इसका मैन्युफैक्चर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे डव 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉलम भी आपका प्राइमरी की नहीं होगा। तो यहाँ पे बचता क्या है पी कोड, और पी कोड में सीक्वेंस देखते हैं तो सारी वैल्यूज यूनिक है, और कोई भी वैल्यू, कोई भी जो रो में वैल्यू जो है नॉट नल वैल्यू नहीं है, दैट मींस सारी वैल्यूज नॉट नल है यहाँ पे, और वैल्यूज जो है यूनिक है। तो दो कंडीशन की ध्यान रखनी है सब कुछ, और उसको सजेक्ट करना है और बताना है। तो लिस्ट द प्रोडक्ट कोड। अब नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो फर्स्ट क्रिएट टेबल से पहले आपको यूज करना डेटाबेस, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस का नेम व्हाट एवर यू वांट टू गिव जनरली, तो प्रोडक्ट रो डिटेल कर देता हूँ, डिटेल। तो इट already created the show tables to show the list of database to show list of databases in the system। जितने भी डेटाबेस आपने बनाए तो प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे आपके एग्जिस्ट कर रहा है। देन यूज, डेटाबेस क्रिएट हो गया, बट जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं होंगे। वी हैव टू एंटर एक्सेस द डेटाबेस, तो उसके लिए यूज करना है टू एक्सेस द डेटाबेस यूज, और यहाँ पे सेमीकोलन ऑप्शनल है, नो नीड फॉर सेमीकोलन। अगर नहीं भी लगाते तो प्रॉब्लम नहीं है, और अब लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी दोनों एक्सेप्ट करता है। तो चेंज डेटाबेस है चेंज, अब आपका डेटाबेस जो है वो है प्रोडक्ट डिटेल। So tables to check the data, tables in a this empty side, that means there is no table, there are no table in product detail। So first we have to create a table। to create table name आपको given है क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट, वही यूज करना है। देन आपको जो जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस में टेबल दे रखी है पी कोड, तो पी कोड आपको यूज करना है। पी कोड आई एम राइटिंग हियर स्मॉल लेटर्स में, और आप देखते हैं तो P01 कोड है, तो वेरकैर कैरेक्टर फॉर्म में है, आप चाहे तो कैर भी यूज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 लेटर्स। अगर आपको प्राइमरी की लेना है तो यू गो फॉर प्राइमरी की हियर, देन कॉमा, सेकंड पार्ट, सेकंड कॉलम P नेम फॉर प्रोडक्ट नेम, इट विल आल्सो a string, varchar 20 create table product, enter, then bracket first column name P code, और स्पेस, देन फर्स्ट नेम ऑफ द कॉलम का जो टाइप आप लेने वाले हो वैल्यू के बेस पे लेना है, तो मैंने यहाँ पे कैर लिया, और सबकी साइज सेम है जनरली, तो मैंने 3 कैरेक्टर्स का देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है 3 यूज कर रहा है। तो अगर P यूज आ रहा है तो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होगी, अल्फा न्यूमेरिक के लिए आइदर यू यूज कैर और वेरकैर, दोनों में से एक डेटा टाइप आप यूज करोगे। कैर फॉर फिक्स्ड लेंथ, और वेरिएबल लेंथ अगर से यहाँ पे P नेम में वेरिएबल लेंथ है यू गो फॉर तो P code char, और फिर constraints if you want to give any constraint, तो primary key अगर मैंने देना है यहाँ पे, I will go for primary key, and first column की entry हुई, second column आपके P name, varchar 20, और varchar क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो साइज देखोगे आप प्रोडक्ट नेम की वो डिफरेंट है सबकी, तो उसके लिए हम varchar लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ऊपर फर्स्ट वाले कॉलम में फिक्स लेंथ थी सबकी, तो मैंने यहाँ पे कैर यूज किया। और कंस्टेंट अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं नॉट नल फॉर नॉट नल, एम्प्टी वैल्यू नहीं हो वहां पे कोई भी, यू प्राइस इंटीजर, नेक्स्ट कॉलम न्यू प्राइस के बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरर है वहां पे, गो फॉर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में भी सेम होगा, कैर
और आई गो फॉर varchar क्योंकि यहाँ पे सबकी साइज भी डिफरेंट होगी, तो 20 और सारे कॉलम कंप्लीट विद ब्रैकेट देन सेमीकोलन एंटर. Query okay, 0 rows affected, that means table is already created. To check the structure of check table, you can go for desk, then table name, product. सारा 11th का है आपके पार्ट. तो फर्स्ट this will display the form of this field, that is p code is column 1, column 2 is p name, column 3 is u price, and column 4 is a manufacturer. Then type of the data used for that particular column, p code के लिए character, size वहाँ पे 4, प्राइमरी की लिया नॉट नल इज नल वैल्यू तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, नो. देन p name varchar, मैंने उसको नॉट नल डिफाइन किया है तो नो, नल वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल. Then u price integer or size 11 by default, manufacturer varchar 20. So desk product, or either I go for describe product. तो describe में भी सेम वर्क करेगा. फिर insert into table का name product. Then values I am going to insert values. values आपको उसी सीक्वेंस में देनी. फर्स्ट पार्ट इस सीक्वेंस में आपके जैसे go for P01 product ID, product का name, washing powder, then comma, unit price 120, then brand name of this that particular brand or manufacturer, sir, semicolon enter. Same arrow की यूज करें and then सिर्फ just edit करें. यहाँ पे to place of washing powder second entry is toothpaste 54 Colgate. Toothpaste 54 price then Colgate. Enter. The flow affected. If you want to check the display the data from or records from a table, then select star from table product. This will display all the rows or columns from a table. So select usually used to display columns from a table. So star means all the columns from tables, the data from all the columns. So दो columns, दो rows की data entry की है मैंने यहाँ पे, दो row को display किया P01, P02. अगर आपको ज़्यादा rows enter करनी तो वापस use करें यहाँ पे, and then go for 3. Toothpaste. Then go for soap. Price 35 something, comma, और enter. So this is again third row enter हो गई आपकी. Select start to check the data in a table. ये आपकी जनरली टेबल डिस्प्ले हो गई यहाँ पे. अगर मुझे अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है आपकी, जनरली गो फॉर एग्रीगेट फंक्शन आपको अप्लाई करना है मैक्स मिनिमम. तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम कॉलम यू प्राइस, सेलेक्ट मैक्स और यहाँ पे कॉलम का नेम आएगा यू प्राइस एंड देन गो फॉर फ्रॉम टेबल प्रोडक्ट. जब आप कॉलम का नेम लिखते हो तो यू हैव टू राइट टेबल नेम आल्सो. सो टेबल नेम नहीं देंगे तो वो यू प्राइस कहाँ पे सर्च करेगा, उसको नहीं पता कि वहाँ पे यू प्राइस किस कॉलम का नेम है या कौन सा वेरिएबल एज ए यू प्राइस वर्क कर रहा है. यू गो फॉर सेलेक्ट मैक्स यू प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, दैट मींस यू प्राइस कॉलम के से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया है तो ओनली सिंगल रिजल्ट आया आपके 1 to 0. अगर मैं इसी पे बात करता हूँ मैक्स की जगह पे अगर एग्रीगेट फंक्शन या मल्टीपल रो फंक्शन यूज नहीं करता हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आपकी जो आपके फंक्शन थे मैथ फंक्शन जो भी यहाँ पे, या स्ट्रिंग फंक्शन यूज करूँ मैं लेंथ, जैसे लेंथ. तो लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की लेंथ फाइंड करेगा. 120 की लेंथ 3, 54 की लेंथ 2, 35 की लेंथ इज 2. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है उसके इसमें, तो यहाँ पे काउंट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर इन यू प्राइस कॉलम में. हर एक जो वैल्यू है, 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज के रिगार्डिंग उन सबकी वैल्यूज काउंट करेगा. तो फर्स्ट रो की वैल्यू लेगा, उसपे काउंट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और डिजिट्स 3. देन सेकंड रो की वैल्यू लेगा, वहां पे काउंट करेगा, थर्ड रो की वैल्यू लेगा.
तो जब लेंथ सिंगल रो की बात करते हैं तो वो एक वैल्यू लेता है, उसके रिगार्डिंग सिंगल रिजल्ट देता है। बट इन केस ऑफ आपके एग्रीगेट फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन बहुत सारी रो का डेटा लेता है और उन सब पे अप्लाई करता है फंक्शन और प्रोड्यूस करता है रिजल्ट, सिंगल रो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो आइए आपको ध्यान रखना है कि सिंगल रो फंक्शन विल प्रोड्यूस सिंगल रो रिजल्ट। तो सिंगल रो को इनपुट में लेगा, सिंगल रो रिजल्ट देगा। बट इन केस ऑफ आपकी मल्टीपल रो और एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रो का डेटा इनपुट में लेगा, आउटपुट में आपको प्रोड्यूस करता है ओनली सिंगल रो रिजल्ट। जैसे मैक्स में देख लीजिए आप, तो सेम मैक्स की जगह पे अगर मैं सम भी अप्लाई करता हूँ, सम एवरेज जो भी, तो सारे फंक्शन आपके इस तरह से वर्क करते हैं। सम, फिर मेरे पास हो गया यहाँ पे एवीजी एवरेज, तो एवरेज भी सिंगल वैल्यू होगा। अब काउंट करता हूँ यहाँ पे, काउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नल वैल्यू मेरे टेबल में नहीं है, तो आई मस्ट एंटर। तो मैं यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल प्रोडक्ट, वैल्यूज इंसर्ट करने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज। और वैल्यूज जो है फर्स्ट वैल्यू तो कंपलसरी है, यू हैव टू गो फॉर दैट, P04 कॉमा सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट का नेम, वो भी कंपलसरी क्योंकि नॉट नल कर दिया मैंने। तो अगर नॉट नल नल वैल्यू डालूंगा यहाँ पे NULL, देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। प्राइस जैसे 120 कॉमा और मैन्युफैक्चरर नेम लिखो। तो कॉलम पी नेम कैन नॉट बी नल, क्योंकि आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया वहां पे, जो पी नेम कॉलम विल नॉट कंटेन नल वैल्यूज। नॉट नल आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, दैट मींस दिस कॉलम विल नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू। नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको वहां पे वैल्यूज डालनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंड वॉश, और वैल्यूज मेरे पास अभी नहीं है, मैं इसको प्लेस करता हूँ नल, एंटर करता हूँ। दिस रो इज अफेक्टेड, दैट इज ये रो आपकी इंसर्ट हो गई है। हम सिलेक्ट स्टार करते हैं, नल वैल्यू आपके प्राइस के अंदर एंटर होगी, क्योंकि मुझे अभी तक हैंड वॉश की प्राइस मालूम नहीं है, तो यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ कि नल आपके प्राइस और मैन्युफैक्चरर जो कॉलम है उनमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कि मैंने कंपल्सरी नहीं किया है, क्योंकि नल वैल्यू का सेट कर सकता है, तो मैंने नल वैल्यू डाल दिया। अब मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ रोज इन अ नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ यू प्राइस कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इन यू प्राइस कॉलम, तो काउंट करता हूं मैं, काउंट द नंबर एंड इज काउंट यू प्राइस फ्रॉम टेबल का नेम प्रोडक्ट, सेमीकोलन एंटर। तो दिस विल काउंट ओनली 1 2 3 4 नंबर पे नल वैल्यू उसको इग्नोर करेगा। तो जब आपके काउंट फंक्शन जो है सिंगल रो सिंगल कॉलम पे वर्क करता है, उस केस में वो नल वैल्यू को इग्नोर करता है। तो दस दैट मींस नल वैल्यू को काउंटिंग में नहीं लेगा। अब देखो सेम चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं एवरेज निकालता हूँ एवीजी, तब भी वो नल वैल्यू को काउंट में नहीं लेगा, नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। और एवरेज आप देखोगे 3 वैल्यू की एवरेज भी सेम थी, तो नल को काउंटिंग में नहीं ले रहा है। दैट मींस जब एवरेज करोगे, सम करोगे, तो नल विल नॉट काउंट। देखो सम करूंगा तो भी नल काउंट नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि अगर नल को किसी के साथ भी ऐड कर देता हूं तो एवरीथिंग इज नल। बट वो नल को इग्नोर कर देता है उस केस में, अगर नल वैल्यू है आपके कॉलम में तो नल वैल्यू को इग्नोर करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वहां पे, कि जब एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, चाहे सम हो, चाहे वहां पे एवरेज फंक्शन यूज कर रहे हो, मैक्स मिन फंक्शन यूज कर रहे हो, और काउंट फंक्शन यूज कर रहे हो ऑन पर्टिकुलर कॉलम, तो उस केस में आपको नल वैल्यू को इग्नोर करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं देता हूँ काउंट स्टार। तो काउंट स्टार जो है आपके पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करें टेबल में, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। काउंट स्टार मींस काउंटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, तो दिस विल गिव अ 4। बट अगर मैं कॉलम की वैल्यू डालूंगा यहाँ पे काउंट यू नेम यू प्राइस, तो उस केस में आपके रिजल्ट आएगा 3। तो बाकी के रिमेनिंग जो फंक्शंस है आपके, वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, चाहे वो सम है, क्लास है, कोई भी है, तो नल वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। तो सारे फंक्शन इस तरह से वर्क करते हैं, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। कंडीशंस भी आएगी वहां पे, ऑर्डर बाय, बाकी वेयर क्लॉज भी आ सकता है वहां पे, तो वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन बाय, और प्रैक्टिस करें घर पे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थैंक यू।